कि जी मतलब सारा कुछ ख़त्म हो गया, सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में लोग हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स आ रही हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विच आर बीइंग डेल्ट विद. एनीवे आज तो यार मैं इसके मतलब मैं आज जो हमारा फोकस है, it's a very unfortunate development. I would like you to, through you, to spread this message among the people of the state, of the country. And पहले ये कर लेंगे. हाँ जी बताइए. जो बी और सी कैटेगरी गैंगस्टर है जो आजकल पंजाब में एक्टिव हैं और लगातार पिछले 2 महीने से इतनी सारी वारदातें हो रही, 3 महीने में आपने कितने पकड़े? देखिए पिछले 3 महीने में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं. जो भी जहाँ पे एक्सटॉर्शन हुई, जो उधर हुआ, जो अर्श ढाला एंड पार्टी जो सरी में बैठे हैं, वैंकूवर में बैठे हैं, उन लोगों ने जो कुछ कार्रवाइयाँ कराई. एक यहाँ पे फिलौर में हुआ, दूसरे वो सारे केसेस हमारे बठिंडा में जो हुआ था वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं. सो बाकी दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो नहीं बाकी लोग भी हैं जी. हाँ जी. Yes, we have been getting inputs about the nexus between these. ये कोई clean cut तो होता नहीं है कि कोई कि जी एक काम जो criminal है वो criminal ही है, वो कुछ कोई किसी तरह का काम करते हैं. So there have been forces, there had been people across the border, anti-national, जो इनको exploit करने की कोशिश करते रहे हैं. पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहा है. And this is a matter of concern and it is. Police is sure that this tag was earlier you were talking about. The tag was dropped from the other side of the border into the Indian country. This is the assessment. जो उसकी पैकेजिंग थी जो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ, तो ये this is typical हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से. The first time we made a recovery was in September or October of 2019. करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं. पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं. And that is the assessment. I mean to. ये बॉम्ब अराउंड 1 to 2 kgs आप बता रहे हैं? नहीं 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है. So the total. I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, where it is used and how it is used. Naturally, 2-3 kg RDX जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. And I mean, it's a very, very sophisticated device and it's a very sophisticated bomb. बार-बार ड्रोन की गल आ रही सर, उਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ड्रोन ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ BSF ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, 91 92. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ 90 ਬਾय द एंड ऑफ 93. So with drones, with this new technology, it is a big security challenge. Central agencies, Government of India, ਉਹ aware ਹੈਗੇ ਆ. ਸਾਡੀਆਂ meetings ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ. Efforts are being made by all the central agencies, by the Government of India, by the MHA. ਇਹ ਸਾਰੇ sensitized हैं of this threat. It is not that they are not sensitized. And all agencies, whether it is the BSF, whether it is other agencies, they are making efforts. Indian Air Force, everyone is alive to the threat posed by these drones. Drone is one of the most potent threats at this point of time. किस पे जी? हैंड ग्रेनेड्स पे मार्किंग्स होती हैं, उसमें लॉट नंबर वगैरह भी होता है. तो वो उसी किस्म के पहले भी हम पकड़ चुके हैं. अभी हमने इतनी जल्दी वी हैव नॉट बीन एबल टू, बट मोस्ट लाइकली
वो सिमिलर जो आपने पहले नाम लिया, सो मोस्टली वहीं से आते हैं, लेकिन ये इनके कई जगह बनते हैं। ये मतलब ये इनका थ्रू लाइसेंस, दे आर मेड इन डिफरेंट कंट्रीज, दे आर आरजीज ग्रेनेड। ये पुराने कई अलग अलग देशों में ये बने हुए हैं, इसलिए इन पर कंट्रोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये बहुत सारे मुल्कों में अंडर लाइसेंस बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। सो ये ऐसे हमने पहले भी रिकवर किए हैं। 2 तरह के ग्रेनेड्स पंजाब में रिकवर हुए हैं पिछले 3-4 साल में। एक इस्तेमाल किया गया था हमारे, एक आपको याद होगा, एक हमारे ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ No, we have no such evidence. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 125-150 ਵੈਪਨ ਫੜੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मतलब दूसरे बड़े गुड क्वालिटी पिस्टल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑल्सो। बाकी बाहरों आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। There are Zigana pistols which are made in Turkey. There are Beretta pistols made in Italy. Then there are a lot of Norinco ਜਿਹੜੇ Star marka pistols ਹੈਗੇ हैं. They have also been recovered. So they are, I mean, we don't know whether who's using what. तो देखिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और जानकारी मिल रही किस तरह से साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे नाकाम किया गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है। श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, पंजाब से पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता रहा और जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि हालिया हमला हुआ था टेक्निकल एरिया में, जम्मू के एयरपोर्ट पर। एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश रचने की कोशिश की गई है और 3 किलो RDX बहुत ज्यादा होता है। देखिए, बहुत बड़ी ये साजिश है जिसे नाकाम किया गया है। 15 अगस्त से पहले ये खतरनाक मंसूबों के साथ ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इसे नाकाम कर दिया गया है। मैं दिखाऊंगी, देखिए क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में विस्फोटक। ये देखिए टिफिन बॉम्ब आईईडी, टिफिन बॉम्ब आईईडी की बरामदगी हो गई है। और अब देखिए किस तरीके का ये टिफिन यूज किया गया है। ये एक बच्चों वाला टिफिन है जिसके अंदर आईईडी रखा गया था, विस्फोटक रखा गया था। ये बहुत बड़ी साजिश आतंकियों की है और इसे अमृतसर में जो टिफिन बॉम्ब मिला है वो आप देख सकते हैं। अगली इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके जरिए इन तस्वीरों को देखकर ये पता चलता है कि कैसे ये साजिश 15 अगस्त से पहले रची गई थी। और टिफिन बॉम्ब जो बरामद हुआ है ये वो टिफिन बॉम्ब है जिसको देखिए खोलने के बाद आपको जब ऊपर से आपने वो टिफिन देखा, आपको किसी बच्चे के स्कूल ले जाने वाला टिफिन जैसा दिखा, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं, जब पुलिस ने इसे ओपन किया तो आप देखिए इसके अंदर आईईडी, इसके अंदर विस्फोटक कैसे किया गया था। ये तारों का जंजाल जो आपको दिख रहा है, दरअसल ये जंजाल एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लगाया गया था। ये दूसरा और ये तीसरा देखिए, यहाँ RDX विस्फोटक आपको नजर आ रहे हैं, ये छर्रे आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा विस्फोटक है, इसकी जो कोशिश थी, इसके जरिए एक बड़े विस्फोट को अंजाम देने की कोशिश थी। लेकिन आतंकी साजिश से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश कही जा रही है या खालिस्तान से इसके कनेक्शन जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने सुना है कि डीजीपी बता रहे थे कि उन्होंने सीएम को भी इस बाबत जानकारी दे दी है। ये जो पूरा का पूरा विस्फोटक है, पाकिस्तान से लगी सीमा से भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं, एक बैग पूरा बरामद हुआ है जिसके अंदर ये विस्फोटक था। और आईडी में 2 किलो RDX पंजाब पुलिस की। और ज्यादातर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर बार बार ड्रोन का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतों का अंजाम दिया जा रहा है। सलील हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलील, अपने दर्शकों के लिए हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये कामयाबी मिली है, किस तरह से ड्रोन के माध्यम से इस विस्फोटक को अमृतसर भेजा गया। देखिए, 15 अगस्त को लेकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट किया हुआ है पंजाब, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ पंजाब का लगता है। चाहे वो फिरोजपुर की बात करें, चाहे गुरदासपुर की बात करें, तो अमृतसर के गांव कंदीला के अंदर जो टिफिन बॉम्ब है, जो बच्चों के प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, उनको जो है वो बॉम्ब उनके अंदर RDX 3 किलो RDX जो है वो बरामद हुआ एक बैग के अंदर और ड्रोन के जरिए ये यहाँ पर फेंका गया है। जिस तरह से जो दिनकर
दिनकर गुप्ता डीजीपी हैं, उनका यह कहना है कि कल शाम को 6:15 बजे के आसपास ये बैग बरामद हुआ। उसके बाद तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश, पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। कभी जम्मू कश्मीर और कभी पंजाब के अंदर जो बॉर्डर। जी सलील हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं आपको। 15 अगस्त को थी धमाके की साजिश। बड़ा खुलासा यह है कि एक बार फिर जब भी कोई महत्वपूर्ण दिन होता है भारत में तो उस पर नजर रहती है, बुरी नजर रहती है, और ऐसा ही कुछ करने की फिराक में थे ये आतंकी, जिसकी वजह से जिसकी सहायता के लिए ये जो विस्फोटक था वो यहाँ भेजा गया था। अमृतसर में जो बरामद किए गए हैं विस्फोटक, वो बड़ा खतरा। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 पैकेट में आईईडी हैंड ग्रेनेड, गोलियां मिली हैं और ये बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। 7-8 अगस्त को ड्रोन के माध्यम से ये यहां पहुंचाया गया। इस तरह की भी खबर अभी सामने आई है। संदिग्ध वस्तु मिली है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, टिफिन बॉम्ब मिला है। आईईडी किस तरह से तैयार किया गया था ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक टिफिन में इसे डाला गया था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इसकी वक्त पर बरामदगी हो गई है। 7 थैलियों से मिले थे ये बारूद और ऐसा लग रहा था कि इन्हें टुकड़ों में यहां भेजा गया और फिर इसे असेंबल करके किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां बताया जा रहा है 7 से 8 अगस्त के बीच यानी कि शाम को ये बरामद किया गया है।